Hi, sir. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Hope you are doing well. Yes, sir. Okay, take a long breath in. Take another long breath in. Breathe in for warmth. Uh, Om Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Om Trayambakam Yajamahe पुष्टिवर्धनम ऊर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षे यमामृतम् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमयम् हरि ओम् योगेन चित्तस्य पतेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेतं योपाकरोतुं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिः प्राञ्जलिरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णेय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम अर्चय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कर नमः। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायण। ओम मातृदेवो पितृदेवो गुरुदेवो अतिथिदेवो। ऑल देव देवता प्रणाम। जय गुरुदेव। Start. So, ma'am, today, as for your message, which one is the one you're looking? 3.2 is pending, right, for you, Parneji? 3.2 only, it's next topic for you, right? Ji, sir. 3.2. Okay. So, anyway, yesterday we have covered whatever things in the evening you have attended properly, right? Yes, So, sir. yeah, that is not in the course. It will little bit higher end I have covered. So I think in one of the previous classes also I covered. I don't know you are there in that class or not. So Yes, evening sir. I've class done 3.1 before. Yes. you have attended, right? Yes, sir. Today we'll speak about 3.2 Introduction to Sensory Organs. Okay, it's a bit easy, but yes, now in listening it is looking easy, but if you are not doing proper practice, you will struggle again. Okay, so you have to before exam only you have to try this on. So have you tried to book slot, ma'am? Have you tried? No, sir. I didn't got time yet. I'll try on weekend. Okay.
So tan matras or sensory organs or your indriyas, that is also one of the important aspect of yoga, because if you're controlling that also, it is a big thing. Okay? So that will also help you out long. So one is Gyanendriyas. So sensory organs are called Gyanendriyas in yoga and Ayurveda. They help in perception of the external world, receiving sensory information, communication between body and mind. So, for example, any communication that is coming to my brain, if you can remember yesterday's class, the gateway is our indriyas, all the tanmatras. Okay. So, something I'm watching some object which is in light. So, it's somewhere my retina is observing a signal is passing to my brain and that is responding. So, I'm recognizing the object somewhere. My subconscious brain, I know what is that. So, from that, it is matching the data. I'm hearing something, that sound is converting to a signal, it's going to brain. So I know what is the meaning of that word or something. Then if I don't know, suppose some other language will tell, I'll not understand because somewhere my brain don't know. I haven't trained my brain for those words. So in that way, that is also one signal. Touch, it is passing on signal. So suppose I'm taking some food and all. So it is touching the tongue. So my brain knows what is the taste and all and heat, okay, that all it will know. So what is the food item, what kind of thing I required and all, my brain knows. So that is linked. Then your next is grana. So order, foul smell, good flavor, okay, that all grana shakti there. So in that way, so that all somewhere receiving sensory information. So it is giving, like after eye, there is some connection to the brain which is giving a signal. After ear, sound is converted to a signal and going to brain. So some brain is the like head of the whole body. So head of the department, HOD, or you can say principal component. So there everything is going. There logically the signals are processing. So in that way, sensory organs are Gyanendriyas in yoga and Ayurveda. So eyes, ears, nose, tongue, skin, this all are somewhere like passing information to brain, which is communication between body and mind. One. Second is it is connecting us as a what is the perception of external world that my brain is coming to know through indriyas. Next, each sensory organ is associated with a specific sense. So one of the five elements, Pancha Mahabhutas. So each sensory organ is associated with eyes, ears, nose, tongue, skin. So one of the five elements. So the five elements or Panchabhutas already you know. So that is somewhere linked to this all. So in that way, you can say each sensory organ is associated with Panchabhutas and a specific sense. So suppose eye, its purpose is like a camera, like it is watching and it's capturing something data and giving signal. Hearing, all sound and all, it is going through ear. So even ears maintaining body temperature and all, that's why in a winter, deep winter, we are covering ears. So in that way, those all factors are there. But these all have their specific thing. Anything is disturbed, right? You'll struggle. If my body is not fit, or if I'm not getting test and all due to ama or toxins, that the problem. Skin is not sensing, means there is no signal is going into that area. Prana pravaha is not there. So that is a problem. Okay. Then eyes, ears, nose, tongue, everyone has their own specific sense and associated with Panchabhutas. So that also we'll discuss today ki which Panchabhuta is connected to which one, that we'll see. So one is organ of vision. Okay. So helping in seeing the object, eyes, chakshu, okay, color, shapes, and movement. So if anything is movement, so I'm able to watch that. Colors, I'm doing any object which is in light, so I can see that. In dark, maybe I cannot see because my eye is not designed for that. But for an owl, okay, owl, so it can see the object in the dark also. In night also it can watch. So for that, that was designed in that way. So any movement that we can see. So it is associated sense is vision and it is tejas.
और फायर तत्व इन पंचभूता आइस आर रिलेटेड टू फायर। जैसे कि एक हिंदी में टर्म होता है आग से आग निचोड़ रहा है, मीन्स व्हेन वी आर इन एंग्री लिटिल बिट रेडिश एंड ऑल, पीपल विल जनरल से आंखों से आग निकल रहा है, there is a fire in the eye and all, so that is nothing but your tejas or chakshu. Next, supports learning and awareness, important for concentration and daily activities. So supports learning and awareness, important for concentration and daily activity. Care, how will take care of eyes. So you know already sleep is properly required to recover your eyes. Screen time from that will like recover. Cleansing eyes we have already. Trataka is one of the thing in Satkarma. So that we can apply to clean our eyes. Okay, balanced diet rich in vitamin A. So पत्ते खाते हैं ज़्यादा. Okay, so that all are good for our eyes. आपका ये आई ड्रॉप्स वगैरह तो मेडिकल टर्म है, बट जनरली त्रिफला से भी आंखों का पावर बढ़ता है. एंड ऑल्सो वी कैन डू आई एक्सरसाइज. ये आई एक्सरसाइज हम करते हैं ना इसमें, हाँ, इनिशियल वार्म अप में मैं ऐसे वाला सब करवाता हूँ ना, क्योंकि ना त्राटका के लिए आंखें रेडी कर लूंगा एंड आई डू लिटिल बिट एक्सरसाइज बिकॉज लॉट ऑफ स्क्रीन टाइम इज फॉर मी. सो आई रोटेट कंप्लीटली डायगोनल एंड ठंडे पानी से आंखें धोना. सो समटाइम विल फील अनईजी एंड ऑल, तो ठंडे पानी से नहाना, आंखों को धोना. सो दैट ऑल्सो समटाइम्स इट विल गिव यू रिलैक्सेशन फॉर योर आईज. Ears, Karna, organs of hearing. Okay, receives sound and vibration. Associated sense, hearing. Related element, ether or space, Akasa Tattva. Importance, communication, balance and coordination. So, main is you have to remember ears is ether or Akash Tattva. Space is the Panchabhuta element for that. Rest all, it's very easy. Ki a sound is coming. So you have already the smallest bone in the ear, smallest, this one also, steps, I think. I told steps. Okay. Steps is the smallest bone inside it one. So you have overall a mechanism is there or one layer is there where your sound is touching, and from that a signal is going to brain. Okay. So communication, balance and coordination, that all need this. Next, avoid loud noise. Okay. So very high, like our eye has some capacity. From that, if it is more loud noise, definitely it will be disturbing for us. Maintains ear hygiene. Okay. So we have to maintain ear hygiene time to time. We have to, there are so many ways to clean that. In our old method, we used to add ghee. Okay. So little bit hot ghee and all will put sometime, because those are the natural way to cleanse. Otherwise, oil, nowadays we are getting ear drops and all. So sometime you have to do cleansing and all, so that all the dust will come out and easily you can hear. Practice silence and relaxation. Okay. Silence and relaxation will uh, like help you to relax complete this one ears. And also you will do Brahmari pranayam or any humming things, nada sound. So definitely it will do little bit movement on these places. So you can try one humming bee sound. Try by your own. Mm. Are you observing? There's a vibration near the ears. If you cannot do, then you can do Brahmari. In Brahmari, you'll properly you'll get the little bit small vibration near the ears. Mm.
Okay, next, घ्राणा, organ of smell. Okay, so घ्राणा आपको याद नहीं आएगा शायद, but that is one of the thing in our body. घ्राणा detects, orders and assists breathing. Okay, तो आपका, नोज को घ्राणा बोलते हैं। हाँ, घ्राण शक्ति बोलते हैं ना संस्कृत में, हिंदी में भी बोलते हैं, सो मेनी प्लेसेस इट से। कुत्ते का घ्राण शक्ति बहुत अच्छा होता है बोलते हैं, तो हमें कुत्ते का घ्राण शक्ति होना चाहिए बोलते हैं। उसका मतलब क्या है? स्मेलिंग पावर। हाँ, वो ना कहीं भी कुछ चुराया हुआ है, उसको स्मेल करते करते उस जगह पहुंच जाए, तो उसका घ्राण शक्ति नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल में। एक वो संस्कृत वर्ड मुझे भूल गया मैं, काकस्नाना बकधाना, मीन्स फट से नहा के आने में ना, एक क्रो है वो फट से नहा लेगा। एंड जो ये होता है आपको शोन होता है, मछली को ऐसे डायरेक्टली इतना ध्यान होता है कि पानी से डायरेक्टली जाके झपक के निकल जाता है, उसका लंबा सूंड होता है बोल के वो पकड़ लेता है। देन आपका नींद कुत्ते का तरह होना है, हल्का इतना हुआ वो उड़ जाएगा फट से। घ्राण शक्ति अम, उसी का बेस्ट है। और एक किसी का है, चारों को मिलके एक डायलॉग है, तो आई विल सर्च इफ आई विल गेट एंड आई विल शेयर इट। तो उसको बोलते हैं वो सब क्वालिटी होना चाहिए बोल के हमारे टीचर्स बोल रहे हैं। तो इन दैट घ्राणा शक्ति जो है ना कुत्ते का, जिसको डिफेंस के लिए, कुछ डिटेक्शन के लिए, चोर पकड़ने के लिए, कुछ कुछ चीजों का, कपड़े उसका स्मेल से उसको डिटेक्ट करने के लिए, वो सब होता है। क्योंकि हर किसी का एक इंडिविजुअल ये होता है, मतलब मतलब और किसी के साथ वो मैच नहीं करेगा, फिंगरप्रिंट और मेरा शरीर का एक स्मेल एंड ऑल, वो पूरा यूनिक होता है। और इवन ये भी, जैसे कि डीएनए रिपोर्ट वगैरह निकालेगा ना, तो क्या होगा ना, फादर का, मदर का और मेरा मैच करेगा, तो उससे पता चल जाएगा कि यस, मतलब हम लोग एक फैमिली से हैं बोलकर बिलोंग करते हैं, उनको पता चले। नेक्स्ट, एसोसिएटेड सेंस स्मेलिंग, तत्व पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी से पहले स्मेल आता है, तो पृथ्वी तत्व जो है नाक का है। तो ये आपको थोड़ा कन्विंस करके याद रखना पड़ेगा, क्यों? ईयर का और आंखों का समझ में आ जाएगा थोड़ा, लेकिन पहला खुशबू मिट्टी से निकलता है, वैसे आपको सोच के याद रखना है। ओके, नेक्स्ट, हेल्प्स आइडेंटिफाई एनवायरमेंट, तो कौन सा एनवायरमेंट है एंड ऑल, घ्राण शक्ति से आपको पता चला। सपोर्ट्स रेस्पिरेटरी हेल्थ, नाक से आपका मेन ऑक्सीजन अंदर जाके CO2 निकल रहा है, तो इन दैट वे ऑल्सो रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए नोज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क। नेसल क्लिनसिंग, जल नेति, प्राणायाम, क्लींस टेक्निक, सूत्र नेति, जो भी नेति आप कर रहे हो, ओके, इट्स नॉट ओनली नेसल क्लीनिंग के लिए जल नेति, घी नेति भी कर सकते हैं। ओके, आपका सूत्र नेति कर सकते हैं। प्राणायाम करने के टाइम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, कुछ ब्लॉकेज है निकल जाएगा। ओके, वो है। एंड क्लीन एनवायरमेंट, डस्ट नहीं होगा, ज्यादा धुआं वगैरह नहीं होगा, ओके, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होगा, देन दैट इज केयरिंग। अगर नहीं हो पा रहा है, मेरा पॉल्यूशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो मैं खुद मास्क लगाऊंगा जब बाहर जा रहा हूँ, तो वैसे क्या करूंगा, बहुत सारे डस्ट को रोक दूंगा, तो दैट विल हेल्प। टंग, जिह्वा, organ of taste, okay? Detects taste sensation, associate taste, associated sense टेस्ट करना, related element जल तत्व, डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, तो आपको पहला है जल तत्व, कैसे आप याद करोगे, मुंह में पानी आना बोलते हैं, अरे मैं एक खाना याद करके मुंह में पानी आ गया, नहीं तो सलाइवा जनरेट हो रहा, तो लिक्विड तत्वों को लिंक करके आप ये याद रख सकते हो। तो जी सर। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, ओके, हेल्प्स इन स्पीच एंड कम्युनिकेशन। आप अगर देखेंगे इन इन सबका कम्युनिकेशन में टंग मूवमेंट हो रहा है, आप वावेल का करके देखिए, जो आपका फेस योगा में भी करवाते हैं, नहीं तो म्यूजिकली सारे गमा पा करते हैं, जो चक्र का एक्टिवेशन। तो देखिए, E, see, my movement is changing. E, U, U, A, I, O, O. And when you are doing consonant also, you see, upper palate touch करना, नीचे का palate touch करना, ऐसे sound generation आपका होगा। का, ka, ka, where it is touching, you see, kha. Kha means upper palate, it is directly touching and it's coming. So, some your speech and communication, that all, okay, tongue has the
बिगर रोल। बिना टंग पकड़ के आप एक वर्ड बोल सकते हैं तो देखिए बहुत टफ लगेगा। मैं क्लोज करके टंग को मूव नहीं करके बात कर रहा हूँ। हल, हल, हल। सी हेलो, हेलो इज नॉट क्लियर। है, है, होगा नहीं। लेकिन हेलो, Yes, sir. hello. So somewhere that all we know how to add here and there. So even in if you go for a pure grammar in Hindi or something and all, they'll tell you how to chant each one, and those all are categorized into separate varnas and all. Dirgha swara like kha, gha are dirgha swaras. Swara varna, simple one, vowels a, e, I, O, U. So these all are some face exercises and all why happen. In this way it is designed. So a dirgha swara or consonant cannot be pronounced without help of swara varna. So in that way, see kha, a is attached to that. Kha, a is attached. Ki, ghee. Okay. So e, that all attached to some swara varnas, matras. So आपका टॉक्सिन वगैरह रहता है तो यू हैव टू क्लीन एटलीस्ट ट्वाइस ए डे। तो वो जरूरी है। हेल्दी डाइट, अच्छा खाना खाएंगे तो आपका वो हेल्प करेगा। अवॉइड एक्सेस स्पाइसी एंड जंक फूड। स्पाइसी जंक फूड का यहाँ दिक्कत करेगा और वो क्या करेगा, आपको एक अम्मा क्रिएट कर देगा, टॉक्सिन्स क्रिएट कर देगा आपका। अगर देखेंगे फीवर के बाद मुझे खाना टेस्ट नहीं लगता एक दो दिन, फीवर उतरने के बाद में, तो वो रीसेट करते हैं अंदर का। अम्मा को क्लीन करने के बाद जो मेडिकल पावर वगैरह है, इतना टैबलेट्स डोसेस वगैरह लिए हैं, उससे रिकवर होने के बाद जाकर हमें बेटर लगता है। वायरल फीवर में, मलेरिया फीवर, टाइफाइड वगैरह में पूरा मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है। रिकवर होने के लिए कुछ टाइम लगता है। स्किन, ओके, इन संस्कृत इट इज कॉल्ड एज त्वक। हिंदी में त्वचा बोलते हैं ना, त्वचा। सो त्वचा से त्वक याद रखेंगे। त्वक इज द संस्कृत वर्ड, ऑर्गन ऑफ टच। सो डिटेक्ट्स टच, टेम्परेचर, ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है वो सब फील करेगा। अगर कुछ गर्म चीजें टच कर देंगे जो कि बहुत ज्यादा गर्म है तो हमें जलेगा। कुछ प्रेशर आ रहा है वो पता चलेगा। अगर इसके ऊपर मैं कुछ ज्यादा बड़ा चीज कांटा लगाऊंगा, कुछ प्रेस करूंगा, वो प्रेशर फील कर पाएगा। पेन, ओके, टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म ठंडा टेम्परेचर, वो सब सेंस करेगा। तो इसका तत्व क्या है, वायु तत्व। ऐसे याद रखिए, स्किन के ऊपर इमिडिएटली कुछ अगर टच हो रहा है, एयर एलिमेंट। सो इन दैट वे यू कैन डू। सो कल हम लोग बात कर रहे थे और मैं ग्रुप में मैसेज भी डाला था। लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन स्किन, प्रोटेक्ट्स द बॉडी। उसमें स्किन पोर्स होते हैं जिससे आपका स्वेटिंग होना इज लाइक, मैदा आपका गर्म होने से बॉडी थोड़ा स्वेदा छोड़ दे रहा है, एनवायरमेंट में गर्मी होने से आपका फील कर रहा है और थोड़ा लिक्विड छोड़ रहा है। तो इन दैट वे इट इज मेंटेनिंग दैट ओस्टोसिस, मतलब बैलेंस करता है बॉडी। क्लीनिनेस, ओके, शरीर को क्लीन करना। ऑयल मसाज, अभ्यंगा, प्रॉपर हाइड्रेशन, ये सब करने से आपका स्किन अच्छा रहेगा। एंड अगर आपका अंदर से पेट क्लीन है, ऑटोमेटिक स्किन डिसीज खत्म हो जाएगा। अगर वाता या पित्त कफ जो प्रकृति आपका वो बैलेंस है, प्रॉपर आप गर्म पानी गुनगुना पानी ले रहे हो, अभ्यंग करके नहाने जा रहे हो कुछ टाइम के बाद, वो सब करने से ऑटोमेटिकली आप, आजकल तो बहुत सारे स्किन मॉइस्चर क्रीम्स ये वो सब आ रहे हैं, लेकिन हमारा ओल्ड मेथड बोल रहा हूँ, हल्दी, बेसन, उसमें थोड़ा ऑयल डालना, ओके, उसमें और मिल्क ऐड करते थे। तो ये सब करके हम लोग जनरली एक स्पेशल इवेंट में जेंट्स के लिए, बट एवरी डे इट विल बी बाय आवर मदर एंड ऑल सिस्टर्स एंड ऑल डेली। तो उससे क्या होगा, स्किन का भी इंप्रूवमेंट होगा और बाहर हल्दी का अप्लाई आपका शरीर को ठंडा रखता है, और अगर अंदर पीते हो तो आपको गर्माहट देता है। तो उस हिसाब से बोथ वे इट इज बेनिफिशियल और स्किन हेल्थ को इंप्रूव करता है। रिलेशनशिप विथ माइंड, ओके, सेंसरी ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विथ माइंड और मानस, नर्वस सिस्टम, ओके, आपका नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट है। सो जो आपका स्किन में कहीं कुछ अगर मूवमेंट हुआ, वो सिग्नल कहीं ना कहीं आपको ऊपर जा रहे हैं। और ऐसे ही एक वेगस नर्व है, कहीं भी हम टच वगैरह कर रहे हैं इमीडिएट इंफॉर्मेशन चला जाता है, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया को कनेक्ट है वेगस नर्व का। तो डायरेक्ट कान का 4 फिंगर्स का नीचे यहाँ वेगस नर्व, वहाँ और पेट का डायरेक्टली।
So excessive sensory stimulation can disturb mental balance. So बहुत ज्यादा sensory stimulation, stimulate मतलब जो बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो मेंटल डिस्टर्बेंस करता है। थोड़ा बहुत ठीक है। योगा हेल्प्स कंट्रोल सेंसेस थ्रू प्रत्याहार, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। तो योगा आपका क्या करेगा? प्रत्याहार मतलब क्या है? सेंसेस को विड्रॉ करके लुकिंग इनटू इनसेल्फ, दैट इज प्रत्याहार। डीप मेडिटेशंस, माइंडफुलनेस, वो सब करेंगे तो आपका सेंसेस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी होगा एंड आप जान पाओगे व्हाट इज हैपनिंग विद। इंपॉर्टेंस इन योगा: concentration, awareness, meditation, mind body coordination. So yoga practices improve sensory function and mental calmness. तो एक ऑर्गन आइस, संस्कृत नेम चक्षु, उसका सेंस विजन एंड एलिमेंट फायर एलिमेंट। ईयर्स कर्ण, कर्ण भी बोलते हैं, तो उससे आपका क्या होगा? हियरिंग का काम होगा, एयर एलिमेंट। तो ये लास्ट वाला सेकंड कॉलम एंड लास्ट कॉलम ज्यादा ध्यान देंगे। घ्राणा अर्थ, जीवा वाटर जल तत्व, त्वक और त्वचा एयर एलिमेंट और ईथर एलिमेंट। नहीं, एयर ओनली एयर। सो इन दैट वे यू कैन रिमेंबर द ऑल द फाइव सेंसरी ऑर्गन्स, देयर फंक्शंस, एसोसिएटेड सेंसेस, पंचभूता में रिलेशनशिप क्या है वो समझ में आना। हाउ टू कंट्रोल senses through yoga. So one is your pratyahara, then dharana, dhyana, samadhi. These all will, and caring and maintenance of sensory organs. कैसे केयर करेंगे? So क्वेश्चन एक मुझे आ गया था तन मात्रा, तो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दैट टेबल आल्सो हियर। थोड़ा नेम चेंज हो जाता है, तन मात्रा और बिग चीजें। शब्द और साउंड, बाय डिफॉल्ट आपको शब्द साउंड कौन सा ऑर्गन के लिंक है? कान का, कर्ण। Yeah, ओके, हाँ, इथर आकाश तत्व। स्पर्श, स्पर्श मतलब अगेन टच ओनली, सो touch. स्किन। ओके, त्वक। रूप, रूपा इज फॉर्म एंड विजन, तो किसी का रूप, Okay. किसी ऑब्जेक्ट का रूप वगैरह देखने के लिए आइस, उसका I तेजस और फायर। रसा, रसा इज टेस्ट, taste. तो टंग का एंड जल तत्व लिंक। गंधा, स्मेल को गंधा, घ्राणा कुछ भी बोल रहे हैं, वो तन मात्रा में आता है। तो Hmm. आपको ये पहला लाइन ज्यादा याद रखना है, कौन सा? शब्द, स्पर्श, So, रूप, रस, गंध, दीज आर कॉल्ड तन मात्रास। ओके, याद रखना है। so सो इवन और थोड़ा चीजें मैं ऐड कर दिया हूँ, वो भी आपको हेल्प करेगा। ज्ञानेन्द्रियस, सो देर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स। कर्मेंद्रियस, देर आर फाइव कर्मेंद्रियस, आर फाइव एक्शन ऑर्गन्स। कर्म मीन्स एक्शन, सो दीज ऑर्गन्स परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटीज। वाक, अरे वाक शक्ति चला गया मतलब बात करना चला गया। ओके, कोई पेशेंट का डेथ होने से पहले वाक शक्ति भी चला जाता है, बात नहीं कर पाता, तो दैट इज स्पीच ऑर्गन। पानी, हैंड्स, ओके, दिस इज ग्रास्पिंग, फंक्शन इज ग्रास्पिंग। सो हैंड्स के साथ पानी करना है, तो दिस इज न्यू थिंग यू हैव टू रिमेंबर। pada, pada is feet, already you know, for movement. Payu, payu is little bit new word for me. Pani and payu only, like in yoga class I heard, but हिंदी में या normal use में ज्यादा नहीं है। anus, excretion। उपस्था, उपस्था is a reproductive organ or reproduction. So इनमें से पादा only I know, वाक only I know, this three। मैम आप सुने हैं पहले किसी लैंग्वेज में कहीं यूज होना पता है क्या? no, sir. ओके, New. थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट ट्राई करेंगे याद करने के लिए, क्योंकि वाक शक्ति और पादा मुझे इजीली समझ में आता है। ये G. तीनों, हाँ, ये तीनों आपको ऐसे ही करना है। वायु एक्सक्रीशन सिस्टम, मतलब जो वेस्ट एलिमिनेशन मतलब, और उपस्था, उपस्था इज रिप्रोडक्टिव Reproduction. ऑर्गन्स। हाँ, पानी का हैंड्स बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, बट तो इतना को डायरेक्ट याद रखेंगे, तन्मात्रा से आप इजीली याद कर लोगे। सेंसेस ऑर्गन को ओनली आपको थोड़ा याद करके, एक चीज आपको दिक्कत होगा, घ्राणा के साथ अर्थ एलिमेंट कैसे है वो कंफ्यूज हो सकता है। अभी के लिए ये याद रखेंगे, मिट्टी से खुशबू आता है बारिश होने में एंड ऑल, तो उस हिसाब से G. एवरी अदर ऑर्डर एंड फ्लेम स्टार्ट्स फ्रॉम अर्थ। ओके, कुछ भी फ्लावर हो, कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट से ही निकला, तो वहां से हमारा फ्लेवर आता है, वैसे ही याद कर लेंगे। और ये टेबल थोड़ा टफ लगेगा, बाकी सब आपका इजी है, यू कैन रिमेम्बर। सेंसरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड, Gyanendriya. which sensory organ is responsible for vision? I. The Sanskrit name for eye is?
चक्षु. चक्षु. The sense associated with ear is Hearing. ear. Which element is associated with ear? Ear Ether. is ether. Akash. Okay. Okay. The nose is associated with which sense? Smell. Smell. Okay. The Sanskrit name for nose is घ्राणा. Grana. Grana. घ्राणा. ओके. घ्राण शक्ति बोलते हैं ना. तो जी. आई डोंट नो इट इज हिंदी वर्ड और नॉट, बट संस्कृत वर्ड तो है. मीन्स घ्राणा. घ्राण शक्ति. एक बहुत सारे सेमिनार आप सुनेंगे. कुत्ते का तरह घ्राण शक्ति होना चाहिए बोलते हैं. गुड क्वालिटी. व्हिच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द नोज? कुत्ते की तरह Earth. नींद होना चाहिए भी बोलते हैं, राइट? जी. व्हिच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद नोज? Earth. अर्थ एलिमेंट. ओके. थोड़ा इसको टफ लग सकता है, कंफ्यूज हो सकता है. ऐसे सोच लीजिए कि मिट्टी का खुशबू है. ओके. टंग इज द ऑर्गन ऑफ Taste. टेस्ट. ओके. द संस्कृत नेम फॉर टंग इज Jiva. व्हिच एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद टेस्ट? Water. Skin is responsible for the sense of. Touch. The Sanskrit name of skin is. Walk. हिंदी में भी त्वचा बोलते हैं तो आई कैन रिलेट. Which element is associated with skin? Air. Which yoga practice helps in sensory withdrawal? Pratyahara. प्रत्याहार. 8 limbs में प्रत्याहार है. जल नीति में हेल्प मेंटेन. Nasal cleansing. Rataka practice is beneficial for Eye and concentration. eyes and concentration. Which sensory organ is the largest organ of the body? Skin. Excessive sensory stimulation may lead to Mental disturbance. overstimulation, is disturbs concentration. Healthy sensory organs are important for Meditation and awareness. आपका और कुछ टॉपिक है क्या इसमें? 2.2 के बाद समय तो नहीं है और ज्यादा, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया. ओके. फिर भी 3.4. 3.4 क्या है? ओके. बहुत इजी टॉपिक है. लेट मी कवर. मतलब आपको पढ़ना है ज्यादा. ओके. बट आई विल गिव ए ग्लिम्स ऑफ 3.4. ओके. डॉक्यूमेंट Okay. पढ़ने से हो जाएगा. ओके. सो योगा क्या है? यू नो योगा आयुर्वेद एंड ऑल क्या है? दो चीज उसका है. मैं फिट हूं और ज्यादा उसको मेंटेन करके वो फिटनेस लेवल मेंटेन करूं. मीन्स मैं स्वस्थ हूं, सुस्त हूं, एंड नाउ आई एम मेंटेनिंग की आगे प्रॉब्लम ना हो. दैट इज प्रोएक्टिवली आई एम डूइंग. दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन. और एक है क्योर. क्योर इज ऑलरेडी मुझे एक प्रॉब्लम आया है, से जैसे कि मुझे अभी प्री डायबिटिक डायबिटिक, मैं इसलिए कुछ आसनास कर रहा हूँ कि मुझे आगे वो ना बढ़ के कंट्रोल रहे. तो दैट इज योर क्योर, और यू कैन से रिएक्टिव स्टफ. ओके. सो अकॉर्डिंग टू योगा, हेल्थ इज नॉट म्योरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज. सिर्फ डिसीज रहना वो सब नहीं है. ओवरऑल एक ट्रू हेल्थ क्या है? WHO भी बोल रहा है फिजिकली वेलबींग. शारीरिक होना है तो फिट रहना है बॉडी. मेंटल बैलेंस, मेंटली इमोशनली स्टेबल रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग रहना है. मेंटली आप सुख दुख में, गुड बैड सिचुएशंस में आप पॉजिटिव एंड मेंटल बैलेंस रहेंगे. एक सोशल वेलबींग, सोशल हार्मोनी, लोगों के साथ फ्रेंडलीनेस, गुड पीपल के साथ, गुड एंड हैप्पी पीपल के साथ दोस्ती करना. ओके. एक सोशल हार्मोनी में रहना. उनके सक्सेस में हैप्पी होना. ओके. उनका मतलब जेलसनेस नहीं होके उसका ऑपोजिट मुदिता, करुणा, थोड़ा दया भाव होना चाहिए. क्योंकि सोसाइटी में पशु पक्षी हैं, एनिमल्स हैं, और बहुत सारे गरीब लोग हैं. पीपल आर इन डिफिकल्टीज एंड ऑल. तो
कभी श्रम दान, कभी धन दान, कभी कर्म दान, कुछ भी देके आई कैन हेल्प। तो दया भाव होना चाहिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल वेलबींग रहना है, मीन्स यू शुड understand overall in yoga, it's not only for annamaya कोश, it's अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो सब एक्सपेक्ट में वर्क करना है, क्योंकि मोक्ष का प्राप्ति करना है। एंड आपको आइटरेशन ऑफ बर्थ समझना पड़ेगा कि 84 स्पेसिस के बाद मुझे ह्यूमन बर्थ मिला है, एंड ह्यूमन बर्थ ऑल्सो अगेन रिपीटिंग। सो और नीचे के जोनी में भी जा सकते हैं। तो यू हैव टू डू गुड कर्मस। तो चार, तीन मेजर कर्मा कौन सा है? संचिता कर्मा, प्रारब्धा कर्मा, एंड एक क्रियामना कर्मा। मतलब एक है मेरा पास्ट लाइफ का जो स्टोर होके है, दैट इज नॉट इन माय हैंड, वो है संचिता कर्मा। प्रारब्धा के थ्रू वो एक्टिवेट होता है इस लाइफ में, सुख दुख, अच्छा बुरा, सक्सेस फेल्यूर, और सब इस जन्म में इंप्लीमेंट होता है। एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज योर क्रियामनो कर्म। क्रियामना कर्म में क्या होता है? आज जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आज नहीं मिलेगा, बाद में वो फ्यूचर में आगामी कर्म क्रिएट करेगा। ओके, सो योगा व्यूज ह्यूमन लाइफ हिस्टोरिकली, होलिस्टिकली, एंड एम्स फॉर द हार्मोनी बिटवीन बॉडी का, माइंड का एक लिंक होना है, प्राण के साथ इंटरलिंक होना है, मानसा बुद्धि अहंकारा, इंटेलेक्ट पे कहीं ना कहीं बुद्धि का, आपका विज्ञान में कोश, उसमें आपका डिसिप्लिन होना है, ओवरऑल कॉन्शियसनेस। सो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड सुप्रीम कॉन्शियसनेस का मर्जर। तो कहीं ना कहीं हमें अनंत के साथ लिंक रहना है। नेक्स्ट, आपका योगा कैसे होगा? ऑल अबाउट बैलेंस। ओके, बॉडी माइंड सेंस ऑल सबका बैलेंस। सो मिताहारा, युक्ताहारा, सो प्रॉपर डाइजेशन, बैलेंस्ड इमोशन, सो दुख सुख सब में आपको स्थित प्रज्ञा, मतलब स्टेबल माइंडेड पर्सन होना है, जो कि एक्सेप्टेंस होना है कि इन टफ सिचुएशन ऑल्सो, कुछ मेरा पूर्व जन्मों की वजह से कुछ मेरा टफ टाइम आ रहा है, तो उस सिचुएशन में भी मैं पॉजिटिवली एक सोल्यूशन ढूंढूंगा, उससे कुछ लर्न करना ट्राई करूंगा। सक्सेस के टाइम में आई हेल्प अदर्स। मेरा सक्सेस को ओवर एक्साइटेड नहीं होके उसको मेंटेन करने के लिए और क्या न्यू स्ट्रैटेजीज चाहिए, मेरा सक्सेस का चीजें मैं अदर लोगों को शेयर करके उनको कामयाब होने के लिए हेल्प करूंगा। My tricks and tips, formulas, I'll ask someone else to apply. काम्स माइंड, मन को काम करेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा दया भाव, ओके, वो सब रहना है आपका। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आपको ये समझना होगा कि मैं पंचभूत में बना हूँ, पंचभूत में विलीन हो जाऊंगा, जन्म मृत्यु सत्य है, जैसे कर्म करूंगा वो कर्म का जो क्रेडिट पॉइंट्स है वही मेरा मृत्यु के बाद आएगा। एंड अल्टीमेट गोल ऑफ योगा मोक्ष की प्राप्ति करना। सो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड इसका मीनिंग। नेक्स्ट, सेल्फ डिसिप्लिन, ए डायनेमिक प्रोसेस ऑफ अचीविंग फिजिकल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल वैल्यू। कैसे होगा? यमा नियमा, सेल्फ डिसिप्लिन भी रहना है, सोशल डिसिप्लिन रहना है। हेल्दी हैबिट्स, तो आपको दिनचर्या ऋतुचर्या में कब खाना खाना चाहिए, कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा आसन आपको करना चाहिए, आपका प्रकृति के हिसाब से, जैसे पित्त प्रकृति है, उनको गर्म करने वाला आसन ज्यादा नहीं चाहिए, कूल करने वाला चाहिए। वाता प्रकृति, उनको आसन मॉडरेट चाहिए, बट दे नीड मोर मेडिटेशन एंड ऑल, तो उसको हम हैबिट में डालेंगे। सीजनरी, कौन सा खाना, कौन सा फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड ऑल मुझे खाने से अच्छा होगा, तो होलसम ग्रेन। ओके, आपका गर्म खाना 0 to 3 आवर्स में खाना है, और वाता पित्त कफ का डिवीजन है होल डे में। सो 10 to 2 उस टाइम में अगर आपका मेन मील खाएंगे, दैट इज पित्त टाइम, तो ऑटोमेटिक आपका समाग्नि रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा हर सिचुएशन में एक पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। योगिक लाइफ, तो ब्रह्मचर्य, आपका दाम्पत्य, देन आपका है वानप्रस्थ एंड संन्यासाश्रम। सब वैसे योगिक लाइफ ओवरऑल हम जिएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जल्दी अर्ली डिनर खाना, जल्दी सोना, वीकली या 2 वीक्स में एक बार एटलीस्ट फ्रूट्स एंड जूस के साथ फास्टिंग करना, ये सब करने से आपका अच्छा होगा। एंड दैव चिंतन जिसका होगा, भक्ति योग होगा, रोज अगर मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, ध्यान मेडिटेशन कर रहे हैं, त्राटका कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी लाइफ में उसका रिफ्लेक्शन आ जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट, योगा एम्फसाइजेस, ओके, बैलेंस इन बॉडी एंड माइंड। तो माइंड का एंड बॉडी का लिंक होना है, मतलब अब जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, उसमें एक अलाइनमेंट हो। सो फिजिकल बॉडी, मेंटल फंक्शंस, इमोशनल स्टेट, सब आपका एक सिंक हो, तो दैट इज योग। बैलेंस ऑफ त्रिदोषस, जो आयुर्वेदा का बोल रहा था, वाता हो, आपका पित्ता हो या कफ हो, उसको बैलेंस करना है। अगर जैसे वाता है,
उसका प्रकृति है ड्राई एंड कोल्ड। तो आप गर्म खाना, ऑयली, घी वगैरह, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, न्यूट्रिएंट फूड वाला खाएंगे तो वात कंट्रोल रहेगा। इनको मेडिटेशन एंड ध्यान करना है, मन चंचल होता। पित्त प्रकृति, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, कूलिंग फूड खाना है, तेल मसाला से दूर रहना है, कूलिंग फूड खाना है, ज्यादा गर्म वाला आसन नहीं करके चंद्र भेदी, चंद्र प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, वो सब इनको एंगर एंजाइटी को कम करेगा। और ये लोग थोड़ा क्या बोलते हैं, मॉडरेटली योग कर सकते हैं आसनास। कफ प्रकृति, मोटापा, लेथर्जी, लेजीनेस, वो सब है, स्टेबिलिटी है। तो मन शांत रहता है, लेकिन बॉडी को इनको फिट रखने के लिए आसन थोड़ा 40-45 मिनट करेंगे भी तो चलेगा। एंड प्राणायाम एंड ऑल को 10-15 मिनट टाइम देंगे। मस्ट रिमेन बैलेंस्ड फॉर गुड हेल्थ। ऋतु के हिसाब से इसका थोड़ा इम्पैक्ट होता है, ऋतु चेंज के टाइम इसको केयर करेंगे। जैसे सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव फायर होता है विंटर में, और बहुत कम आपका डाइजेस्टिव फायर होता है ग्रीष्म में, हेवी समर में। तो अकॉर्डिंगली ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर। सो इम्बैलेंस लीड्स टू डिसीज। वाता पित्त कफ में थोड़ा इम्बैलेंस हुआ, आपका डिसीज क्रिएट करेगा। बैलेंस ऑफ अग्नि, पहला है जठर अग्नि। अगर आपका सप्त धातु का नॉरिशमेंट होना है, 7 टिश्यूज, रस, रक्त, मांस, मेधा, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, ये जो है सप्त धातु है। अब लोग सर क्या क्या बोल दिए, रस इज प्लाज्मा, पहले खाना चबा के अंदर जाने के टाइम जो रस क्रिएट होता है। रक्त, उससे ब्लड जनरेट होता है। उसके बाद आपका मांसा, मसल क्रिएट होता है। मैदा और फैट क्रिएट होता है बॉडी में, थोड़ा एनर्जी स्टोर के लिए, लुब्रिकेशन के लिए। नेक्स्ट आपका होता है बोन, जो आपका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। कल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एडल्ट में 206 बोन्स है। नेक्स्ट मजा, बोन मेरो, उसके अंदर बोन मेरो से फॉर डेप्थ है, शुक्र होता है। तो उसका नॉरिशमेंट होना है। आपका जठर अग्नि में 4 स्थिति है। जिसम अग्नि, फंक्शनली 4 टाइप्स, सम अग्नि, आपका तीक्ष्ण अग्नि एंड मंद अग्नि। तो बाकी सब कैटेगरी दिक्कत करेगा। एनीथिंग यू नीड इज सम अग्नि मेंटेन करने के लिए आपको शारीरिक करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, खाना राइट टाइम पे खाना पड़ेगा, अल्पाहार करना पड़ेगा। सो दैट ऑल। सो मिताहार युक्ताहार। वैसे अब डाइजेशन भी कैसे होगा, अगर आप ना कभी कभार फास्टिंग कर लिए, थोड़ा क्लींसिंग हो गया, अच्छा लगेगा। कभी ज्यादा खाना हो गया तो क्या करेंगे, उसका वज्रासन करेंगे, या आपको जो कुछ स्पाइसेस हैं जैसे कि सौंफ है, जीरा है, वो सब पियेंगे। ओके, पान के पत्ते में खाएंगे, तो वो सब क्या होगा, आपका धीरे धीरे डाइजेशन को हेल्प करेगा। तो इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन करेगा, एनर्जी लेवल मेंटेन करेगा। और जठर अग्नि ठीक रहा, अम्म या त्रिविधा मल ठीक से होगा। तो सम अग्नि, एज पर सुश्रुता, सम अग्नि द बेस्ट अग्नि फॉर ओवरऑल हेल्दी लाइफ। पंचकोशा, अभी ही बताया था। अन्नमय कोश, जो पूरा इनिशियल वन, और फिजिकल बॉडी, और अन्न मतलब खाना, खाना का हिसाब से जैसा अन्न वैसा मन, फिजिकल बॉडी। फॉर डेप्थ में और अगर जाएंगे, तैत्रीय उपनिषद में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएगा। तैत्रीय उपनिषद आपका यजुर्वेद में है। थोड़ा याद याद कर लेंगे बस। तो क्या होगा, इसका क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप बोल दोगे। सो फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश एनर्जी बॉडी, जो सटल एनर्जी, मनोमय कोश मेडिटेशन एंड मेंटल बॉडी, विज्ञानमय कोश इंटेलेक्ट बॉडी, और आपका विज्ञानमय विशेष ज्ञान इज विज्ञान, आनंदमय कोश ट्रू ब्लिस। सो ये पंच कोश के ऊपर आपका योगा एंड मेडिटेशन प्राणायाम वर्क करता है। तो जबकि फिजिकल एस्पेक्ट इज स्पोर्ट्स हो गया, जिम हो गया, खेल कूद, वो सब फिजिकल एस्पेक्ट में ज्यादा काम करता है। त्रिगुणा, सत्व रज तम, आप जानते हो। और उसमें क्या है, प्यूरिटी एंड हार्मोनी सत्व। सत्व से आपका एकाग्र और निरोध स्टेट में जा सकते हैं, जो कि आपका चित्त भूमि, इसमें मन का एक स्टेट होना है, और सात्विक खाना खाने से ही होगा। रजस, एक्टिव एंड रेस्टलेसनेस, तो वो हमें बहुत ज्यादा नहीं होना है। तमस, इनर्शिया एंड इग्नोरेंस, तो वो सब हमें सूट नहीं करेगा। तो यू नो ऑलरेडी दिस। पंच प्राणा आपको जानते हैं, वो प्राणा कौन कौन सा है। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। समाना फॉर डाइजेशन, ओके, व्यान होल बॉडी सर्कुलेशन, उदान ऊपर, अपान एक्सक्रीशन सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम का, तो आप ऑलरेडी उसके ऊपर आइडिया है। ओके, so maintains vitality, improves mental clarity, supports organ function, and
With pranayama we can balance this one. Vitality मतलब ऊर्जा. अच्छा ऑक्सीजन हो रहा है, सॉरी सॉरी, अच्छा ऑक्सीजन हो रहा है तो बॉडी के अंदर जा रहा है, तो मेंटल क्लैरिटी रहेगा, ऑर्गन फंक्शनिंग अच्छे से रहेगा जब आपका प्राणायाम वगैरह कर। चित्त प्रसादनम, मेंटल कामनेस, ऑलरेडी इसके ऊपर भी हम लोग क्लास ले चुके हैं। तो पीसफुल माइंड, इमोशनल बैलेंस, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब चीजें अगर रहेगा, ऑटोमेटिकली आपका चित्त जो है वो बैलेंस एंड काम रहेगा, स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी को आप हटा सकते हो। यमा नियमा, तो आप जानते हो ऑलरेडी इसके ऊपर। यमा में कौन सा आता है? साबास, आबास भी बोलते थे हम लोग। अहिंसा, ओके, नॉन वायलेंस, कर्म से के वचन से किसी को हर्ट नहीं करेंगे, खान पीन में खाने से किसी का हत्या नहीं करेंगे, सत्य, ट्रूथ के साइड रहे, में धर्म के साइड में रहेंगे, अस्त्य, किसी का चीजें चोरी नहीं करेंगे, क्रेडिट हो वस्तुओं नहीं, ब्रह्मचर्य, वन ऑफ द डिसिप्लिन लाइफ, देन अपरिग्रह, अपरिग्रह इज विड्रिंग ऑफ सेंसेस, राइट। नेक्स्ट शौचा, संतोषा, ये जो आपका SIT है, इसमें सब आता है, ईश्वर प्रणिधान, तपस, और आपका स्वाध्याय। तो सेल्फ लर्निंग करके सेल्फ रियलाइजेशन इज वन ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा। तपस मतलब एक डिसिप्लिन वे में ट्राई करना और उसी रूटीन में रहना, भगवान को सरेंडर करना। संतोषा, मेरे पास जो है वो मैं रहूंगा, ये मेंटली एंड बॉडी वाइज मेरा प्यूरिटी। They promote psychological and social wellness. Then yogic practices for health and wellness. Flexibility, strength and better circulation. वो आसना के लिए मदद करेगा, okay? जो आपका आइडियली फॉर द दिस वन, ताड़ासना, भुजंगासन, शवासना, प्राणायाम आपका ऑलरेडी 8 लिम्स में आप जानते हो, स्ट्रेस रिडक्ट करेगा, बेटर रेस्पिरेटरी, नाड़ी का शोधन, ओके, वो सब करेगा तो ऑटोमेटिक आपका अच्छा क्वालिटी नींद आएगा एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा काम करेगा। मेंटल ध्यान, ध्यान धारणा समाधि आप जानते हो, योग निद्रा शवासना, ये सब करने से बॉडी को रिस्टोर करेगा, मेंटल फोकस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन, इमोशनल स्टेबल एंड सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाएगा, ओके। ये सब आप जानते हो, मिताहारा, ओके, मिताहारा युक्ताहारा जी जानते हो, सर। टाइमली खाना खाना, तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, सात्विक फूड, आपका जो आपका वेल नेचर रिलेटेड सीजन अलाइंड फूड। नेक्स्ट विहारा, ओके, रेस्ट लेना है, अच्छे से 8 घंटा सोना है, प्रॉपर एक्टिविटी करना है, एनवायरमेंट में, क्लीन एनवायरमेंट में रहना, वो सब है। आचारा, गुड बिहेवियर, डिसिप्लिन, पॉजिटिव कंपनी, तो जनसंघा भी रहना है और आपका व्यवहार भी सिंपल फ्रेंडली रहना है लोगों के साथ। नेक्स्ट साइन ऑफ योगिक वेलनेस, फिजिकल इमोशनल तो बैलेंस रहेगा, मन शांत रहना है, गुड डाइजेशन, ओके, जठराग्नि समाग्नि स्टेज में रहना है, रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप रहना है, हैप्पी पीपल, गुड पीपल के साथ रिलेशन रखेंगे, बहुत ज्यादा भीड़ में नहीं रहेंगे, ओके, क्योंकि वो हमें डिस्ट्रैक्ट करेगा, बाधक तत्व। स्पिरिचुअल अवेयरनेस, हमेशा कर्म को और जन्म को समझेंगे। योगा एंड मॉडर्न हेल्थ, स्ट्रेस को मैनेज करेगा, हाइपरटेंशन बीपी को कंट्रोल करेगा, मोटापा को कंट्रोल करेगा, डायबिटीज को कंट्रोल में रखेगा, एंजाइटी डिप्रेशन से आपको बचाएगा जब आप योगा और मेडिटेशन को, प्राणायाम को एक्टिव करते हो। सो ओवरऑल होलिस्टिक वेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लंबा जीना, वही आयुर्वेद का है कि सुस्त और लंबा जीना है, एंड यू शुड बी एसेट फॉर अदर्स। ओके, एनी डाउट पंडित जी? ये आप नहीं गो थ्रू सर। कीजिए, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा, ओके। जी। चलो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे